हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी टाइप्स ऑफ अकाउंट से कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं, और फिर उसके बेसिस पर उसके रूल्स को देखे थे। तो हमने देखा था फर्स्ट accounts. Accounts are classified into two parts. There are two types of accounts. These are called first personal accounts and second impersonal accounts. Accounts are classified into two parts, personal accounts and impersonal account. फिर हमने देखा था what is personal accounts. Personal account are those accounts which are related with company, firm, organization and human beings. So the accounts which are related with company, firm, organization and human beings are called personal account. फिर types of personal account. There are three types of personal account. Personal account is classified into three parts: natural personal account, artificial personal account, representative personal account. Natural personal account are those accounts which are related with natural persons. So the accounts which are related with natural persons are called natural personal account. Natural person means the persons who are created by God, not created by man like human beings. All the human beings are created by God, so all the human beings are called natural person. Second, artificial personal account. Artificial personal account are those accounts which are related with artificial person. Artificial person means the persons who are created by man are called artificial person. The things they do work like as a man, but they have no physical existence are called artificial person. That is company, firm, etc. Third, representative personal account. Representative personal account are those accounts which are related with a particular person or a group of persons. Are called representative personal accounts. So these are the three types of personal account: natural personal account, artificial personal account, representative personal account. Natural personal account related with natural person, and natural person means the persons who are created by God, like human beings, Ram, Shyam, Mohan, Sohan, we, you, us. Artificial personal account are those accounts which are concerned with artificial person. Artificial person means the persons who are created by man, not created by God, like company, firm, organization, etc. And representative personal account are those accounts which are concerned with a particular person or a group of persons are called representative personal accounts, like outstanding expense, prepaid expense, advance income, accrued income, etc.
Like physics, chemistry, math, all the accountancy is based on three golden rules. Among these three golden rules, the first golden rule of account, and this rule will be applied in case of personal account. This rule say debit the receiver. Debit the receiver. Debit, in short we write DR. Debit the receiver, and receiver means the person to whom we given anything. The person to whom we given anything is called receiver, and the rule of account is receiver debit. For example, rupees 5,000 given to अशोक. अशोक को हमने 5,000 रुपया दिया. तो अशोक कौन हुआ? अशोक इज द रिसीवर, जिसको हम देते हैं डेट पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर. अशोक को दिए तो अशोक रिसीवर है. और अशोक को क्या करेंगे? अशोक डेबिट. रुपीस 7,000 given to अजय. अजय को 7,000 रुपया दिए. तो जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं, द पर्सन टू होम वी गिवन एनीथिंग, या द पर्सन टू होम बिजनेस गिवन एनीथिंग इज कॉल्ड. बिजनेस की जगह पर हम अपने आप को ट्रीट करेंगे, हम बिजनेस हैं और हम अजय को दिए. तो अजय उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. इसलिए अजय को क्या करेंगे? अजय डेबिट. तो ये फर्स्ट है, डेबिट द रिसीवर. डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DR. और रिसीवर का मतलब द पर्सन टू होम वी गिवन एनीथिंग, या द पर्सन टू होम बिजनेस गिवन एनीथिंग. बिजनेस जिस पर्सन को कुछ देता है उसको हम लोग रिसीवर करते हैं. सेकंड, इसी का दूसरा, पहले का गिवन. First to debit the receiver. Second, credit the giver. क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CR. गिवर मीन्स द पर्सन फ्रॉम होम we received anything. जिस पर्सन से बिजनेस कुछ रिसीव करता है या हम लोग कुछ रिसीव करते हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं? गिवर कहते हैं. एंड गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. This rule will be applied in case of personal account. Debit the receiver, credit the giver. Receiver means the person to whom we given anything, or giver means the person from whom we received anything. It's called giver. This is the first rule of account, and this rule will be applied in case of personal account. Debit the receiver, credit the giver. Receiver means the person to whom we given anything, or the person to whom business given anything, which called receiver. Giver means the person from whom we received anything, or the person from whom business received anything will be giver. Question करते समय first of all we know it is personal account or not.
अगर पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर है कि गिवर है। रिसीवर का मतलब जिसको हम देते हैं, जिसको बिजनेस कुछ देता है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं, और गिवर का मतलब जिससे हम लोग कुछ लेते हैं या जिससे बिजनेस कुछ रिसीव करता है उसको गिवर कहते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे वी आइडेंटिफाई, हाउ वी आइडेंटिफाई दिस इज रिसीवर और दिस इज गिवर। अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, दिया। और अगर वो गिवर होगा तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीआर। फॉर एग्जांपल इन 3 एग्जांपल से हम समझेंगे कि वो रिसीवर है कि गिवर है। जैसे फर्स्ट ₹1000 गिवन टू पवन, ₹5000 received from Vijay. ₹3000 given to रवि। ये 3 एग्जाम्पल्स है। इससे हम ये जानेंगे कि रिसीवर है कि वो गिवर है। अब कैसे पता चलेगा कि वो रिसीवर है और कैसे पता चलेगा कि वो गिवर है? अगर उसको हमने दिया है या बिजनेस ने उसको कुछ दिया है, बिजनेस की जगह पर हम अपने आप को रख के देखेंगे। अगर बिजनेस का मतलब हमने उसको कुछ दिया, 1000 रुपया पवन को दिया, मतलब 1000 रुपया पवन को बिजनेस ने दिया, या मतलब हमने पवन को 1000 रुपया दिया, हम पवन को दे रहे हैं, तो पवन को दिए तो गिवर नहीं हुआ, हम दे रहे तो पवन उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। मतलब बिजनेस गिवन ₹1000 टू पवन, तो बिजनेस ने पवन को दिया, पवन इज द रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, पवन, उसके आगे डेबिट, क्योंकि पवन कौन है, रिसीवर। दूसरा 5000 रिसीव फ्रॉम अजय, मतलब 5000 रुपया अजय से हमको मिला, या बिजनेस को 5000 रुपया मिला, विजय से 5000 रुपया बिजनेस को मिला, मतलब विजय बिजनेस को 5000 रुपया दे रहा है, या विजय हमको 5000 रुपया दे रहा है, तो विजय कौन हुआ, गिवर। विजय हमको दे रहा है, तो जिस पर्सन से हम कुछ रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं, गिवर, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। थर्ड ₹3000 गिवन टू रवि, मतलब 3000 रुपया बिजनेस ने रवि को दिया, तो रवि उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जिसको हम देते हैं वो रिसीवर होता है, रिसीवर का मतलब द पर्सन टू होम वी गिवन एनीथिंग। हम जिसको देते हैं वो रिसीवर होता है, और हम जिससे देते हैं वो गिवर, या बिजनेस जिसको देता है वो रिसीवर होता है, और बिजनेस जिससे देता है वो गिवर। यहाँ पर बिजनेस ने से 3000 रुपया रवि को दिया गया, तो मतलब बिजनेस रवि उसको रिसीव कर रहा है, रवि रिसीव कर रहा है, रवि रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये पहला रूल है, और ये रूल किसके लिए अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए। बहुत ही सिंपल है, केवल ये देखना है कि अगर हमने दिया है या बिजनेस ने दिया है या बिजनेस में से दिया गया है किसी को, तो वो रिसीवर है, और बिजनेस से अगर किसी को मिला है, किसी से अगर बिजनेस को मिला है या हमको किसी से कुछ भी मिला है, तो वो पर्सन गिवर होता है, और रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। एंड दिस रूल विल बी अप्लाई इन केस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, आइदर नेचुरल, आइदर आर्टिफिशियल, आइदर रिप्रेजेंटेटिव। Natural personal account related with natural persons created by God, like human beings, Ram, Shyam, Mohan. Artificial personal account are related with artificial persons created by man, like company, firm, organization. And representative personal account are concerned with a particular person or a group of person, like outstanding expense, prepaid expense, accrued income, and advance or unaccrued income. These four are included in the representative personal account. And for all kinds of personal account, the rule of personal account is the same: debit the receiver and credit the giver. Receiver in short, debit the receiver and credit the giver.
Debit in short we write DR, and receiver means the person to whom we given anything. जिस person को भी हम कुछ देते हैं उस person को receiver कहते हैं, और उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था. And giver means the person from whom we received anything is called giver, and giver will be credit, and credit in short we write CR. So this is the first rule of account, and this rule will be applied in case of personal account, either natural, artificial or representative. Next, second account is impersonal account. Impersonal account means the accounts which are not related with persons. So the accounts which are not related with persons are called impersonal account. These accounts are related with assets, expenses, losses, income, gains, etc. But person are not involved in the impersonal account. Impersonal account is further classified into two parts, or there are two types of impersonal account. These are called first real accounts, and second one is called nominal accounts. So these are the two types of impersonal account, real account and nominal account. Now first of all we discuss about real account. Real account means the account which are concerned with, related with assets or property of the business. The accounts which are related with assets of the business are called real account. Assets means anything which is called the property of the business. That thing is called an asset, that land, building, plant, machinery, furniture, stock, debtors, cash, etc. These things are called assets of the business, and the accounts which are related with assets of the business are called real account. Real account is further classified into two parts. There are two types of real account. This is called first tangible real account, and second is called intangible real account. So these are the two types of real account: tangible real account and intangible real account. Tangible real account means the account which are related with tangible assets. The account which are related with tangible assets. The account which are related with tangible assets are called tangible real accounts. Tangible assets means the assets which we can see or touch. The assets which we can see or touch are called tangible assets, and the accounts which are related with tangible assets are called tangible real account. That is land, building, plant, machinery, furniture, etc. are called tangible assets, and the accounts of tangible assets is called tangible real account. And second one is intangible real account. The intangible real account are those accounts which are related with intangible assets. So the accounts which are related with intangible assets are called intangible real account. Intangible assets means the assets which we can't see or touch. They have no physical existence, but they can feel, are called intangible assets. They can purchase or sold, but they have no physical existence, are called intangible assets. That is goodwill, patent, copyright, trademark, etc. So these are the two types of real account: tangible and intangible. Tangible related with tangible assets means we can see or touch, they have physical existence. Intangible assets means the assets which we can't see or touch, they have no physical existence, but they can purchase or sold, are called intangible assets. And these are the two types of real account: tangible and intangible. For all kinds of real account, tangible or intangible, the rule of real account, and this is the second rule of account, and this rule will be applied in case of real account. This rule says what are the things what are the things comes in the business what are the things comes in the business will be debit, and what are the things goes out from business will be
credit. And this is the second rule of account, and this rule will be applied in case of real account. जो चीज बिजनेस में आती है उसको कम्स इन होती है, आती है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं. या the asset which are comes in the business are debit and the asset which are goes out from business will be credit. For example, how can we know this thing comes or these things goes? First example, purchase building for cash rupees 9,000. तो परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 9,000. बिल्डिंग को हमने 9,000 में खरीदा, तो हमारे पास क्या आया, क्या गया? व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस? बिजनेस में क्या चीज आई? जो खरीदेंगे वो चीज बिजनेस में आएगी, और उसके बदले में जो दे रहे हैं, बिल्डिंग हमने खरीदा तो बिल्डिंग हमारे पास आई, बिल्डिंग कम्स इन द बिजनेस. और क्या हमने दिया? बिजनेस ने क्या दिया बिल्डिंग खरीदने के बदले में? रुपीस 9,000. रुपीस इन द अकाउंटिंग टर्म्स इज कॉल्ड कैश, मींस कैश इज goes out. Building comes in, so it is debit. Cash goes out, so it is credit. जो चीज बिजनेस में आती है वो चीज डेबिट, जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं. बिल्डिंग करते हैं तो बिल्डिंग कम्स इन द बिजनेस, सो बिल्डिंग विल बी डेबिट. कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश विल बी क्रेडिट. सोल्ड मोटर कार फॉर कैश रुपीज 8,000. मोटर कार को 8,000 रुपए में बेचे, तो बेचेंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या आया बिजनेस में? 8,000 रुपया. रुपीस इज कॉल्ड कैश. कैश कम्स इन द बिजनेस, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस? दैट इज मोटर कार. तो मोटर कार गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, सो इट इज क्रेडिट. तो ये आया कैश डेबिट एंड मोटर कार गोज आउट. कैश कम्स इन, मोटर कार गोज आउट. The things which is comes in the business will be debit, and the things which is goes out from business will be credit. This is the second rule of account, and this rule will apply in case of real account. Second account, impersonal, that is the nominal account. So the accounts which are related with expenses or losses or incomes or gains. Expenses or losses or incomes or gains are called nominal account. Expenses means cost of acquiring things or services, it's called expenses. And income means excess of revenue over expenses, it's called incomes. And the account which are related with expenses or losses, incomes or gains are called nominal account. And the rule for nominal account say all expenses and losses will be debit, and all incomes and gains will be credit. This is the third rule of account, and this rule will be applied in case of nominal account. So there are three rules of account: personal account, debit the receiver, credit the giver; real account, what are the things comes in the business debit, what are the things goes out from business credit; and nominal account, all expenses and losses debit, and all incomes and gains credit. For examples of nominal account, this is the examples of nominal account. First, rent paid. To rent paid for the acquiring service of building. Rent paid rupees 5,000. To rent paid, this is the expense, and rent will be debit, and in the form of rent we paid rupees 5,000. This is cash, it will be goes out. Rent is not goes out because it is the service. When service will not go out in the form of service, if we acquire the service, for acquiring this service we paid cash. So rent is the expense and cash goes out. Expense will be debit, rent will be debit, cash is the assets, cash goes out, so it is credit. Second example, wages
paid rupees 5,000. Wages paid, in the form of wages we paid rupees 5,000. Wages paid, the wages is expense, it is acquiring service of labor. Wages expense, so expense will be debit, and in the form of wages we paid rupees 5,000, that is cash. Cash will be goes out, so it is credit. So wages is expense, wages debit, and cash goes out, so cash will be credit. Next example, rent received. If we paid rent, this is expense, but when we received rent, this is income, and income will be credit, and in the form of rent we received cash, so cash will be debit. So cash comes in, so it is debit, and rent income, so it is credit. So in this way, these are the three types of account and their roles. अब इसके बाद हाउ वी सोल्व द क्वेश्चन, ये तो खाली हमने बताया किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन में रिकॉर्ड करते हैं ये अब हम देखेंगे। तीनों तरह के अकाउंट हमने एक साथ में, इसको हम लोग करते हैं पर्सनल, नॉमिनल, रियल, शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं पीएनआर, और रूल्स जो है रिसीवर, एक्सपेंस, कम्स, डेबिट, गिवर, इनकम्स, गोज आउट, क्रेडिट। ये रूल है तीनों तरह के अकाउंट के लिए, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट के लिए। शॉर्ट में याद रख सकते हैं पीएनआर, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, रिसीवर, एक्सपेंस कम्स इन डेबिट, गिवर, इनकम्स गोज आउट, क्रेडिट। अब अकाउंटिंग जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। If one account is debit, then other account must be credit. एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो अगला अकाउंट अपने आप ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक को हम समझ गए कि ये डेबिट है तो उसके बाद दूसरा अकाउंट जाहिर सी बात है कि उसको क्रेडिट होना, क्योंकि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू अकाउंट, इफ वन अकाउंट इज डेबिट देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट, एंड दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्जांपल से अब हम देखेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन से, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट टू अकाउंट इज affected. If one account is debit, then another account must be credit. सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट के लिए देखते हैं। Suppose rupees 5,000 given to विमल, 5,000 रुपये विमल को दिए। तब इसमें दो अकाउंट है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, एक तो रुपीज 5,000 और दूसरा विमल। रुपीज इन द अकाउंटिंग टर्म्स इज कॉल्ड कैश, and विमल को विमल ही रहेगा। कैश कम्स इन द रियल अकाउंट, इट इज बिकॉज इट इज एन एसेट्स। कैश दिए तो कैश गोज आउट, सो इट इज क्रेडिट। विमल इज द रिसीवर, सो इट इज डेबिट। दो अकाउंट इफेक्ट हुआ, पहला विमल का और दूसरा कैश का। गिवन टू विमल, the person to whom we given anything is called receiver and receiver will be debit. अगर विमल डेबिट हुआ तो कैश अपने आप क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक फॉर्म अंडरस्टूड हो गए तो दूसरा अपने आप हम लोग कह सकते हैं कि वो क्रेडिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीव्ड फ्रॉम पवन रुपीज 10,000, पवन से 10,000 रिसीव हुआ। तो पवन कौन हुआ, रिसीवर और गिवर। जिस पर्सन से हम कुछ रिसीव करते हैं वो पर्सन कौन होता है, गिवर। पवन कौन है, गिवर। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो पवन क्रेडिट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, रुपीज 10,000, दिस इज कॉल्ड कैश। अगर एक क्रेडिट हुआ है तो दूसरा अपने आप क्या होगा, डेबिट। इफ वन अकाउंट इज डेबिट
देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पवन से रिसीव किए तो पवन गिवर है, गिवर को क्या करते हैं क्रेडिट, और रिसीव क्या किए कैश, व्हाट कम्स इन द बिजनेस कैश, जो आता है व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस डेबिट। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट two account. If one account is debit and other account, then other account must be credit. अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ऑलवेज फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। हमेशा सबसे पहले किसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट, और फिर किसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट। फर्स्ट डेबिट एंड सेकेंडली वी राइट क्रेडिट। डेबिट को तो डेबिट लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के इन द प्लेस ऑफ क्रेडिट वी यूज द वर्ड टू। क्रेडिट मीन्स टू, डेबिट को डेबिट और क्रेडिट की जगह पे क्या लिखेंगे टू। और ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट देन वी राइट क्रेडिट। हमेशा पहले डेबिट को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे क्रेडिट को। जैसे इस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या हुआ है कैश और क्रेडिट क्या हुआ है पवन, तो पहले किसको लिखेंगे कैश को और फिर किसको लिखेंगे पवन को। जैसे फॉर एग्जांपल कैश डेबिट करना है तो कैश, उसके आगे लगाएंगे A/C, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। शॉर्ट में अकाउंट को क्या लिखते हैं AC, नॉट एयर कंडीशन, एयर AC मीन्स अकाउंट। A/C अकाउंट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है A/C, that is account। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी अमाउंट मान लो है 5000 रुपीज। अब क्रेडिट किसको करना था पवन को। क्रेडिट के प्लेस पर क्रेडिट ना लिखी क्या लिखते हैं टू। क्रेडिट हमेशा डेबिट के नीचे 3 लेटर छोड़ करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को छोड़ करके 4th लेटर से लिखते हैं टू। टू का मतलब यहां पर क्रेडिट से है। किसको क्रेडिट करना है पवन को, तो टू पवन। कैश अकाउंट डेबिट टू पवन, और इसके सामने भी अमाउंट कितना लिख देंगे 5000। नेक्स्ट एग्जांपल, ₹7,000 गिवन टू अशोक। तो पहले ये देखा जाए कि इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो। एक तो ₹7,000 और दूसरा अशोक। अशोक को दिए तो अशोक कौन हुआ रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट, तो अशोक को क्या करेंगे डेबिट। क्या गया बिजनेस से ₹7,000, जो चीज जाती है व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस दैट विल बी क्रेडिट। तो कैश गया, कैश को क्रेडिट करेंगे। अब ये दो अकाउंट हमको पता चल गया, फर्स्ट अशोक और सेकेंड कैश दैट इज रुपीस। ऑलवेज फर्स्ट, सबसे पहले हमेशा किसको लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अकाउंट हमेशा किससे शुरू होता है डेबिट से, तब किसको लिखते हैं क्रेडिट से। जैसे कोई भी पूजा करनी है तो भले कुछ भी हो जाए, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश के बाद ही कुछ होगा, सरस्वती लक्ष्मी जो भी हो। उसी तरह अकाउंट भी सबसे पहले किसको रखता है डेबिट को, उसके बाद ही किसी को रख सकता है। तो डेबिट किसको करना है अशोक को, तो फर्स्ट वी राइट अशोक, उसके आगे डेबिट, अमाउंट कितना है 7,000। क्रेडिट किसको करना है कैश को। क्रेडिट हमेशा डेबिट के नीचे थर्ड लेटर को छोड़ करके कहां से शुरुआत करते हैं 4th लेटर से। टू किसको क्रेडिट करना, दिस इज टू मींस क्रेडिट। क्रेडिट की जगह पर क्या वर्ड यूज करते हैं टू। किसको क्रेडिट करना है कैश को, तो टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से ऑलवेज फर्स्ट हमेशा पहले किसको लिखेंगे डेबिट को, और फिर डेबिट के नीचे थर्ड लेटर को छोड़ करके 4th लेटर से किसको लिखते हैं क्रेडिट को, और क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पर क्या लिखते हैं टू। टू कैश अकाउंट, अमाउंट इसके सामने भी 7,000, एक बार अमाउंट डेबिट के सामने और एक बार अमाउंट क्रेडिट के सामने। आगे इसको हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे, ऐसे बनाना नहीं, तो खाली हम समझ रहे हैं कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं और कैसे डेबिट और क्रेडिट को लिखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि
यहाँ पे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं किए, यहाँ पे अकाउंट वर्ड यूज किए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, कैश के साथ अकाउंट लगाए थे, लेकिन पवन के साथ अकाउंट नहीं लगाए थे, बिकॉज नेचुरल पर्सन के नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। और अगर हम नेचुरल पर्सन के नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए हमको एपोस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट वर्ड यूज लिख सकते हैं। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू पवन्स अकाउंट, ये भी सही है। और केवल क्या लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन, ये भी सही है। मतलब अकाउंट वर्ड अगर यूज करना है तो उसके पहले हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, दैट इज पवन्स अकाउंट, पवन का खाता। और इसी तरह से इसमें भी हमने देखा कि अकाउंट वर्ड नहीं लगाए थे, क्योंकि अशोक पर्सन है, नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड लगाने के लिए पहले हमको क्या लगाना होगा, एपोस्ट्रोफी एस, तब हम लोग लगा सकते हैं अकाउंट, अशोक अकाउंट डेबिट, या फिर केवल क्या लिख सकते हैं, अशोक डेबिट। तो नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगाते। और अगर नेचुरल पर्सन के अकाउंट के साथ अगर अकाउंट वर्ड लगाना है तो पहले एपोस्ट्रोफी एस यूज करना होगा, अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So this is the first rule of account debit the receiver or credit the giver. अब हम लोग सेकेंड रूल की ओर चलते हैं। सेकेंड रूल किसके लिए है, रियल अकाउंट के लिए। और रियल अकाउंट इज कंसर्न विद assets of the business, that is called property of the business, that is land, building, plant, machinery, furniture. इसके लिए रूल्स क्या था, comes in debit, what are the things comes in the business debit, and what are the things goes out from business credit. How we solve the question related with the real account. For example, sold machine for कैश रुपीज 10,000, मशीन को 10,000 रुपए में सोल्ड किया। तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इफेक्टेड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इज इफेक्टेड, व्हाट आर द थिंग्स कम्स एंड व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट। दो अकाउंट है इसमें, एक तो मशीन, दूसरा कैश। मशीन सोल्ड किए मतलब मशीन हमारे पास से जा रही है बिजनेस से, और क्या बिजनेस में आ रहा है, कैश। तो टू अकाउंट्स, फर्स्ट कैश एंड सेकेंड मशीन। कैश comes in so it is debit, machine goes out so it is credit. जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग पहले ही बात कर चुके कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट, इफ वन अकाउंट इज डेबिट देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट, एंड ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। हमेशा पहले किसको लिखते हैं, डेबिट को, और फिर किसको लिखते हैं, क्रेडिट को। और क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख करके क्रेडिट के प्लेस में क्या लिखते हैं, टू। तो इसमें डेबिट किसको करना है, कैश को। तो क्या लिखेंगे, कैश, उसके आगे अकाउंट डेबिट, दैट द अमाउंट इज कितना है, 10,000। क्रेडिट किसको करना है, मशीन को, फ्रॉम द थर्ड लेटर को छोड़ के फोर्थ लेटर से, टू मशीन अकाउंट, इसके सामने भी अमाउंट कितना लिखेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 5,000। क्या इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो बिल्डिंग और दूसरा कैश। एक आया एक गया, क्या आया, बिल्डिंग सोल्ड करेंगे तो कैश मिलेगा, रुपीस मिलेगा, कैश आया, क्या गया, बिल्डिंग गो जाओ बिजनेस। कैश आया तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, बिल्डिंग गोज आउट हुआ, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अकाउंट ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। डेबिट किसको करना है, कैश को, तो क्या, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट इसके सामने जो भी होगा दैट इज 5,000। क्रेडिट किसको करना है, बिल्डिंग को। इन द प्लेस ऑफ क्रेडिट वी यूज द वर्ड टू फ्रॉम द थर्ड, आफ्टर थर्ड लेटर मींस फ्रॉम द फोर्थ लेटर। टू क्या क्रेडिट करना है, बिल्डिंग, उसके आगे अकाउंट। अब देखो इसमें हम लोग दोनों के सामने अकाउंट लगाए, कैश के सामने भी और बिल्डिंग के सामने भी। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद हम अकाउंट लगाते, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट।
अमाउंट कितना है 5000, इसके सामने भी लिख देंगे। तो इस तरह से हर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करता है, दो अकाउंट इफेक्ट करता है। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट अपने आप क्रेडिट होता है। लेकिन हमेशा पहले हमको किसको लिखना है, डेबिट को, और फिर किसको लिखना है, क्रेडिट को। क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पे क्या लिखते हैं, टू, फिर उसके आगे जो अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर उसके आगे अकाउंट। तो इस तरह से ट्रांजैक्शंस को हमको अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पहले एनालिसिस करेंगे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। जब ये पता चल गया इट इज डेबिट इट इज क्रेडिट, तो ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। जो अकाउंट डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके आगे अकाउंट वर्ड लगाएंगे, फिर उसके आगे डेबिट लिखेंगे, फिर जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे। फिर दूसरे अकाउंट को देखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है तो क्रेडिट के प्लेस पर डेबिट के थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्या लिखेंगे, पहले टू, फिर जो अकाउंट क्रेडिट करना वो, फिर अकाउंट, और फिर उसके बाद अमाउंट। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब थर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स और गेन्स are called nominal account. Incomes or gains, expenses or losses, incomes or gains credit. Expense or losses debit, incomes or gains credit. This is the third rule of account, and this rule will be applied in case of nominal account. And nominal account say all expenses and losses debit and all incomes or gains credit. तो these are the three types of account. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं नॉमिनल अकाउंट को, ये देखा जाए। रेंट पेड ₹1000, रेंट पेड की तो रेंट एक्सपेंस, और रेंट के रूप में क्या दिए ₹1000, दैट इज कॉल्ड कैश। एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, कैश गया तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। लेकिन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 1000। क्रेडिट किसको करना है, कैश को। तो थर्ड लेटर को छोड़कर डेबिट के फोर्थ लेटर से क्या लिखेंगे, टू। किसको क्रेडिट करना है, कैश, फिर उसके आगे अकाउंट। पेड नेक्स्ट, सैलरी पेड ₹5000। सैलरी पेड की तो सैलरी एक्सपेंस है, इसको डेबिट करेंगे। सैलरी के रूप में हमने क्या पेड किया, ₹5000, दैट इज कॉल्ड कैश। कैश गोज आउट हुआ, इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। डेबिट किसको करना है, सैलरी को। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, फोर्थ लेटर से टू, कैश अकाउंट, और फिर जो भी अमाउंट होगा एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट के सामने। तो दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब ये तीनों तरह के अकाउंट हमने देखा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और हर अकाउंट से दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं कम से कम। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो अगला अकाउंट अपने आप ही क्रेडिट होता है। हमेशा पहले हम लोग किसको लिखते हैं, डेबिट को, फिर किसको लिखते हैं, क्रेडिट को। क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख करके क्रेडिट की जगह पर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, टू। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको ये एनालिसिस करना होगा कि विच टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। इफ वन अकाउंट इज डेबिट तो अपने आप दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ये नहीं कि अगर कोई भी डेबिट हो गया तो अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, इस रूल से हमको नहीं करना है। वी फॉलो द रूल्स ऑलवेज। रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट के लिए रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट अगर है तो what are the things comes in the business debit, what are the things goes out from business credit। और nominal account है तो all expenses and losses debit and all incomes and gains credit। जैसे सैलरी पेड किए ₹5000, सैलरी एक्सपेंस है तो इसको डेबिट कर दिए। सैलरी के रूप में हमने क्या दिया, ₹5000। कैश हमारे पास से रुपीस को कैश करते, कैश हमारे पास से जा रहा है तो जो जाता है what are the things goes out will be credit। ये नहीं कि सैलरी डेबिट हो गया तो जो बचा अपने आप क्रेडिट होगा,
वो सही नहीं है। हाँ सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल अगर चलेंगे तो कभी भी मिस्टेक्स, गलती नहीं होगी। और अंदाज से करें, अगर ये डेबिट होगा हाँ तो वो क्रेडिट होगा, अगर वो क्रेडिट हो गया तो हाँ ये डेबिट होगा, ये करने का सही प्रोसीजर नहीं है। ऑलवेज फर्स्ट बी रूल्स, और रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कभी भी अकाउंट्स में मिस्टेक नहीं होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, अगर ये हम समझ गए तो अकाउंट में फिर हमारे लिए कुछ भी समझना कठिन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए जानना जरूरी होता है कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं? डेबिट को। फिर किसको लिखते हैं? क्रेडिट को। क्रेडिट को क्रेडिट क्या लिखते हैं? क्रेडिट के प्लेस पे क्या लिखते हैं? टू। नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, अगर अकाउंट लगाना है तो फिर उसके लिए हमको क्या करना होगा? एपोस्ट्रोफी एस यूज करना होगा। एक और चीज बच जाता है ये ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने में, दैट इज फॉर एग्जांपल सोल्ड मशीन फॉर कैश ₹10,000। तो क्या है इसमें? कैश कम्स इन द बिजनेस, डेबिट। मशीन सोल्ड की है तो मशीन हमारे पास से गई, इट इज क्रेडिट। हमेशा पहले किसको लिखेंगे? डेबिट को। अब एक ट्रांजैक्शन से, ये एक ट्रांजैक्शन है, इससे तीन चीजें हमको रिकॉर्ड करना है। पहले को क्या करते हैं? डेबिट, दूसरे को क्रेडिट, और तीसरा चीज जो अब रिकॉर्ड करना वो है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है क्लियरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हमने किया उसका क्लियरिफिकेशन। इसमें डेबिट किसको करना है? कैश को। तो पहले क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, उसके आगे डेबिट पे जो अमाउंट है 10,000। क्रेडिट किसको करना है? मशीन को। थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से टू मशीन अकाउंट। नरेशन लिखने के लिए नरेशन इसके नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लियरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें बीइंग सबसे पहले लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, सोल्ड मशीन फॉर कैश में ऑब्जेक्ट क्या है? मशीन। तो बीइंग मशीन, फिर वर्क को सोल्ड, और फिर जो भी कुछ बचेगा उसको फॉर कैश। तो ये नरेशन है, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। बीइंग मशीन सोल्ड फॉर कैश, पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्क, फिर जो बचा उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दिस वे वी रिकॉर्डेड नरेशन। तो हम देखिए क्या कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से तीन चीजों को हमको रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट डेबिट को, सेकंड क्रेडिट को, और थर्ड नरेशन को। जो अकाउंट डेबिट होगा उसको सबसे पहले, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको उसके नीचे, और फिर सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं। नरेशन मीन्स क्लियरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर फ्यूचर में भी कोई, अगर ये ट्रांजैक्शन मेरे पास ना रहे, अगर केवल ये चीज भी रहे, तो भी हम इस एंट्री को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सोल्ड मशीन, मशीन सोल्ड फॉर कैश मीन्स कैश कम्स इन, मशीन गोज आउट। इसी तरह से एक और परचेज मोटर कार फॉर कैश ₹9,000। तो अब इसमें सबसे पहले वो दो अकाउंट खोला जाए जिसको डेबिट और क्रेडिट करना है। एक मोटर कार है और दूसरा कैश। क्या आया इसमें? मोटर कार परचेज किए, तो जो परचेज किए क्या? मोटर कार। मोटर कार कम्स इन, इट इज डेबिट। क्या मोटर कार खरीदने के बदले में दिए? ₹9,000, इट इज कॉल्ड कैश। कैश गोज आउट, सो इट इज क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंट ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट। इसमें डेबिट किसको करना है? मोटर कार को। क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोटर कार, फिर उसके आगे क्या वर्ड लगाएंगे? अकाउंट, फिर उसके आगे क्या लिखेंगे? डेबिट, फिर उसके आगे क्या लिखना है? अमाउंट। अब ये देखा जाए किसको क्रेडिट करना है? क्रेडिट किसको करना है? मोटर कार को। तो फोर्थ लेटर से थर्ड लेटर को छोड़ करके टू किसको क्रेडिट करना है? मोटर कार। तो टू मोटर कार, फिर उसके आगे क्या लगाएंगे? अकाउंट। अमाउंट, फिर उसके आगे अमाउंट। अब फिर इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? नरेशन। बीइंग, पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? परचेज मोटर कार फॉर कैश में मोटर कार, फिर वर्ब क्या है? परचेज, और फिर जो बच जाएगा that is recorded being motor car purchase for cash। तो
तो इस तरह से हमको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ये तो भी खाली हम लोग समझ रहे बाद में इसका फॉर्मेट है जनरल का, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग जनरल को रिकॉर्ड करेंगे। ये केवल हमें अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारा, इसको हम लोग केवल अभी समझ रहे हैं कि कैसे हाउ वी राइट डेबिट एंड हाउ वी राइट क्रेडिट एंड हाउ वी राइट नरेशन। ये अभी सही नहीं है, इसके लिए पहले हमको फॉर्मेट बनाना होगा, उस फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड करेंगे तब वो 100% करेक्ट माना जाएगा। ये इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट इज करेक्ट बट नॉट फुल्ली करेक्ट, क्योंकि इसमें कॉलम्स हमने अभी नहीं बनाया, ये केवल अभी आपको हम समझा रहे हैं। आगे जब हमारे साथ आप चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे एक्चुअली में इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसको समझ करके कभी कोई ये ना समझे कि ये फुल एंड फाइनल मेथड है, ये तो केवल हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट और उनको सॉल्व करने का तरीका, जैसे बच्चा अगर पहले दिन स्कूल जाता है तो सब लोग पेरेंट्स खुश होते हैं कि हाँ मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, तो पहले दिन स्कूल में कुछ सीखता नहीं है बल्कि केवल खेलता है। फिर उसको हाफ सर्कल बनाना सिखाया जाता है, फिर उसको फुल सर्कल बनाना सिखाया जाता है, फिर उसको ए बनाना सिखाया जाता है, तब उसकी स्टडी क्या होती है, बिगिन होती है। तो इसी तरह आज जो हमने देखा वो केवल ये देखा है कैसे हम लोग अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे डेबिट लिखते हैं, कैसे क्रेडिट लिखते हैं, कैसे नरेशन लिखते हैं। डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, सीआर के प्लेस पर 2 लिखते हैं, फिर नरेशन लिखते हैं। फिर हमने देखा कि हमेशा पहले हम लोग किसको लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं, फिर उसके नीचे थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्रेडिट को लिखते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग नरेशन को लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, अकाउंट्स की शुरुआत करनी है। ऐसे तो सारे टीचर्स अपने अपने व्यू से पढ़ाते हैं, लेकिन पहला लेसन भी सब जनरल ना पढ़ा करके अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पहले लेसन सीरियल से एक बुक में वो दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पहले इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट जनरल। अगर आप ये जनरल एंट्री समझ गए हैं तो इसका मतलब अकाउंट्स में कहीं पर भी कहीं से भी कुछ भी आ जाए, शुरुआत 11 से लेकर के पीजी तक के अकाउंट में कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इफ वी फॉलो द रूल्स ऑफ जनरल एंड ऑल द जनरल एंट्री आर बेस्ड, या ऑल द अकाउंटेंसी beginning to the end is based only on 3 golden rules, and these golden rules are in short, जिसको हमने एक शॉर्ट में आपको बताया कि 3 इन शॉर्ट को हम लोग केवल क्या करते हैं, P&R, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो these are the 3 types of account, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। एंड इसके रूल्स जो थे वो ये था, all the accountancy is based only on these rules and all 3 types of account. If we understood these 3 rules, that means we know everything in account from beginning to the end, either accounting equation or ledger or cash book or any accounts, PG or CA, CS, anywhere. If we know these rules, that means we everything understood in account very easily. P&R means पर्सनल, नॉमिनल, रियल, लेकिन पहले पर्सनल फिर रियल फिर नॉमिनल होता है, लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन में P&R, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। पहले पर्सनल अकाउंट का जो रूल है रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। और नॉमिनल के बाद रियल अकाउंट का जो रूल है व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस डेबिट एंड व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट। क्रेडिट को कभी भी क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट की जगह पे क्या यूज करते हैं, टू। डेबिट को शॉर्ट में डीआर और डेबिट को हमेशा डेबिट ही लिखते हैं। क्रेडिट को शॉर्ट में कहते क्या है, सीआर, लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पर क्या यूज करते हैं, टू। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे कल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉलम बना करके जनरल एंट्री को सॉल्व करते हैं। यहीं से हमारी अकाउंटेंसी की पढ़ाई कल से शुरू होगी। आज तक 3 दिन में जो भी हमने केवल ये जाना है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है। और इसके बाद कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखेंगे कैसे 5 कॉलम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपको मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको क्या कर सके, जान सके और अच्छे से अकाउंट को समझ सके। थैंक यू फॉर टुडे।